अटेंशन। दीप एकेडमिक हाई स्कूल आपके स्वागत में आगे बढ़ेगा। आगे बढ़। Respected Director Sir, respected Honorable Chief Guest, Sri Om Prakash Ji, State Cabinet Minister of Panchayat Raj Uttar Pradesh, and Director Sir, distinguished guests, teachers and dear students. A very warm welcome to you all. Today is a day of immense pleasure for Deep Academic Heights. We are deeply honored to have with us a leader whose life work and principles stand as an inspiring example of dedication, service and commitment towards the progress of society. Sri Om Prakash Ji is not just a respected cabinet minister, he is a voice of a people, a guiding force for rural development, and a visionary who continues to strengthen the foundation of our Panchayat Raj system. His efforts, empowerment, education, and grassroots of upliftment have touched lakhs of lives across our state. Sir, your presence today is a blessing for our children. It brings confidence, motivation, and hope. In your journey, we see the power of hard work. In your achievement, we see the strength of discipline, and in your leadership, we witness the true meaning of service. Your visit has filled our campus with pride, joy, and inspiration. On behalf of Deep Academic Heights family, we extend our heartfelt welcome to our Sri Om Prakash Ji. Your presence today fills our school with pride, inspiration and motivation. Welcome you, sir. I also extend my respectful welcome to our esteemed director, sir. Your constant encouragement, innovative vision and unwavering support have always been the backbone of every success story of our institution. We are blessed to have your mentorship guiding us towards the excellence. Welcome you, sir. I also extend a cheerful welcome to all our respected dignitaries in the dais and staff, and not least but my dear children, who make every event meaningful with their vibrant presence. May today's program bring a memorable moment for all of us and make it inspire our students of dreaming higher and bigger, hard worker and rise stronger. Once again, a warm welcome and respectful welcome to Sri Om Prakash Ji and a heartfelt welcome to each and everyone who present over here. Thank you all. अब मैं हमारे विद्यालय दीप एकेडमिक हाइट्स के डायरेक्टर सर कुमार गौरव जी सर को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वो आए और हमारे अतिथि जी के सम्मान में दो शब्द कहें। आज अपना कीमती समय निकाल के ओम प्रकाश जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। पूर्वांचल में बहुत से राजनेता हुए हैं,
लेकिन ओम प्रकाश जी एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है। बच्चों, आपको ये जान के प्रेरणा मिलेगी कि उन्होंने कितनी संघर्ष किया अपने शुरुआती जीवन में और इस मुकाम पे वो पहुंचे। आसान नहीं होता है किसी एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आना और इस मुकाम तक पहुंचना। वो सब चीज़ें वो कर पाए हैं अपनी कड़ी लगन और मेहनत के कारण। वो भी अपनी बातें यहाँ पे हम लोग उनको उपस्थित करेंगे तो अपनी बातें वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने किया है। इस विद्यालय में वो आए, इसके लिए मैं आभारी हूँ और मैं उनका फिर से धन्यवाद। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। ऐसा पावन सुहावन समय आज है। ऐसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज है। आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम। देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। गायक साथी, प्यारे बच्चों, जब मैं विद्यालय के गेट पर प्रवेश किया तो जो मेरा सपना था, जो मेरी सोच है, वो सपना मुझे दिखाई देने लगा। वो सपना हमारा क्या है? गांव से लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ। हमारा सपना है कि गांव से जो पलायन शहरों की तरफ हो रहा है, वो पलायन शहरों से गांव की तरफ हो। आज दीप एकेडमी विद्यालय के गेट पर आते ही मुझे वो सपना दिखने लगा और आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोगों को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हम लोग अतरौलिया में बैठे हैं। हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, जब मैं विद्यालय के अंदर प्रवेश किया तो मुझे लगा कि हम लोग कोई शहर में प्रवेश कर रहे हैं। जो सपना हमारा है, उस सपने को साकार करने में जो हमारे प्रबंधक महोदय, प्रिंसिपल महोदय और यहाँ के पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग उस काम को कर रहे हैं जो आज के लगभग 5000 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उस सपने को साकार करने के लिए आज जो यहाँ विद्यालय परिवार लगा हुआ है, उसी बात को, गौतम बुद्ध जी के कारवां को आगे बढ़ाने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया।
उसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, उसी कारवां को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, हमारे तमाम महापुरुषों ने एक ही सोच थी कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षित बनने के लिए कोई जरूरी नहीं कि नौकरी ही जरूरी है। नौकरी करना मतलब नौकर बनना, हमारा अपना मानना है। इस नाते शिक्षा वो ज्ञान है कि आप अध्ययन करिए। बच्चों, गांव में जिस परिवार में शिक्षा नहीं है और जिस परिवार में शिक्षा है, दोनों के रहन सहन, दोनों के बोलचाल, दोनों के खान पान जमीन आसमान का अंतर है। इस नाते हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप ही की तरह हम भी बच्चे थे। उस समय इतना डेवलप नहीं था, हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे और प्राइमरी में पढ़ते थे लगन, निष्ठा, मेहनत, संघर्ष। जैसा कि प्रबंधक महोदय ने बताया कि मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा हूं और मेहनत के बल पे, संघर्ष के बल पे, शिक्षा के बल पे माता पिता ने, क्योंकि हम उन्हीं को भगवान मानते हैं, हमारे सबसे पहले भगवान माता पिता हैं, उसके बाद तब हम ऊपर वाले को मानते हैं। माता पिता ने मुझे जब विद्यालय भेजा तो बार बार यही उपदेश दिया कि मेहनत से पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे। उस समय उपदेश माँ बाप ने हमको दिया, उनके उपदेश को, उनके आदेश को मान करके हम लोगों ने वो मेहनत किया। विद्यालय में मार खाते थे। हमारे पारसनाथ पंडित जी प्रिंसिपल हेडमास्टर थे प्राइमरी में, वो सवाल बोलते थे तो हम लोग स्लेट पर लिखते नहीं थे, उत्तर लगा करके जब तक वो सवाल खत्म होते होते 2-3 मिनट में हम लोग रख देते थे स्लेट। तो उनकी आदत थी प्रिंसिपल साहब की, हेडमास्टर साहब की, कि मारते बहुत थे। उनका उद्देश्य था कि ये भैंस से लोग और पढ़ें। तो जब स्लेट उठाते थे तो सवाल तो सब सही, तो प्रश्न कहाँ लिखे हो? प्रश्न हम लोग नहीं लिखे थे, इस नाते लात खाते थे। एक वो दौर था और उसको हम लोगों ने सीख लिया और सीख लेकर के हमने शिक्षा हासिल की। माता पिता का सपना था, हर माँ बाप यही सोचता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ लिख करके आगे बढ़े। तो आप लोग जहां भी हो, मेहनत से, घर पे भी आजकल मोबाइल का युग है। मोबाइल अच्छा भी है और खराब भी है। आपने देखा होगा अभी हाई स्कूल का रिजल्ट आया, इंटर का रिजल्ट आया, तो जिन बच्चियों ने मोबाइल से दूरी बनाया वो बच्चियां प्रदेश में टॉप किया, और जो मोबाइल पर खेलते रहे, गेम खेलते रहे और चीज देखते रहे, उनका क्या असर हुआ वो वही लोग बता सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि परिश्रम, हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो स्लोगन लिखा रहता था कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं, संघर्ष ही जीवन है। तो हम लोग संघर्ष करके बहुत आगे जा सकते हैं। अब आपको बताऊं, मैं अगर अपनी कहानी बताऊं, मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा और पढ़ने के लिए किताब नहीं। एक दौर था उस समय कि दूसरे की किताब मांग के लोग पढ़ लिया करते थे, हाई स्कूल, इंटर, बीए कर लेते थे, मांग करके किताब पढ़ना। कपड़ा नहीं होता था तो कपड़ा भी मांग करके रिश्तेदारी से काम चल जाता था। और आजकल के जो बच्चे हैं इनको तो पता भी नहीं होगा कि उस समय की गरीबी क्या थी। आज महुआ का पेड़ भी कहीं नहीं मिलता होगा, कहीं कहीं होता होगा। उस महुए से एक फूल गिरता था जिसको
हम लोग उसको खा करके विद्यालय जाया करते थे। उसका हलवा बनता था, उसका वो ठोकवा बनता रहा। खैर उस गरीबी को झेला और झेल करके मैंने शिक्षा हासिल करने के बाद मान्यवर कांसीराम जी के साथ संपर्क में आया। नौकरी तो हमको 82 में ही मिल गई, लेकिन पिताजी नौकरी नहीं करने दिए। 81 में सब इंस्पेक्टर हो गए थे, पिताजी नहीं करने दिए। फॉरेस्ट रेंजर हो गए, नहीं करने दिए। किस्मत में लिखा था राजनीति करना, और पूरे गांव की चाहत थी कि इस गांव से कोई राजनेता नेता बने। और आज मैं आपके सामने उस गरीबी को झेल करके भी शिक्षा हासिल की। जब बीए में गया तो दिक्कत होने लगी फीस की, किताब की, कपड़े की। तो रात को ऑटो रिक्शा चलाता था और दिन में पढ़ने जाता था। एक वो दौर था और आज का एक दौर है कि परिश्रम, संघर्ष, मेहनत करके राजनीति में जीरो से शुरू किया। बड़े पिताजी को प्रधान बनाया, पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाया। हमने कई चुनाव लड़ा। हम जब चुनाव हारते थे, लोग कहते थे कि हार गए। हम कभी जीते नहीं, तो हारे कहां से। फिर 2017 में देश के गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी से। पिछली सरकार में एमएलए बने, मंत्री बने, और आज भी आपके बीच में पंचायती राज मंत्री की हैसियत से पूरे देश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर अपनी छाप मेहनत, संघर्ष, परिश्रम के बल पे बना डाला। इस विद्यालय परिवार को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि जो सोच है, जिस तरह का माहौल यहाँ है। मैं अंदर बैठा था, चाय पी रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं अतरौलिया में हूँ कि लखनऊ हूँ। फिर मैं जब अंदर प्रवेश किया तो हमारे विद्यालय में एक कुलपति हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, उनके आवास पे गया था। वो जैसे मिलने के लिए, चाय पीने के लिए बुलाया था। तो उनके कमरे में गया। जब यहाँ अंदर प्रवेश किया तो हमको कुलपति जी की याद आने लगी। तो इस इतना भव्य और दिव्य विद्यालय, इसका लाभ इस इलाके के अतरौलिया के लोगों को उठाना चाहिए। और क्योंकि हमेशा ये बात कही गई है कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर दर ठोकर खाता है। तो हम अपने प्यारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप ही की तरह, जब मैं छोटा था, प्राइमरी में था, जूनियर में था, हाई स्कूल में था, तो लोग नेता आते थे, भाषण देते थे, तो हम लोग भाषण सुनते थे। आप सोचो कि कल मैं आप लोगों की तरह था तो हम लोग बैठ के टाट पर, अब तो कुर्सी चेयर आ गई, टाट पे बैठ के भाषण सुनते थे। और आज चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे किसी विद्यालय का फंक्शन हो, चाहे यूनिवर्सिटी, जब वहां जाता हूं तो मैं वही बात अपने मन में सोचता हूं कि काश एक समय था, परिश्रम और संघर्ष के बल पर नेताओं की भाषण सुनने वाला व्यक्ति आज भाषण सुना रहा है। संघर्ष के बल पे, मेहनत के बल पे, परिश्रम के बल पे आप जहां जिस दिशा में जाना चाहें, दरवाजा खुला है, आप जा सकते, कोई रोक नहीं सकता है। वो आपके ऊपर है। आपके गुरुजन जो हैं, वो जो भी काम बतावें, जो भी बात कहें, वो आपके हित के लिए कहते हैं, आपके प्रोग्रेस के लिए कहते हैं, आपके भविष्य को बनाने के लिए कहते हैं। उनके काम को आप लोग ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से करिए। ये समय आप लोगों को प्रोग्रेस का है। और हम लोग तो जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो संघर्ष के बल पे ही पहुंचे हैं।
क्योंकि मैं एक दिन बैठा था तो एक पत्रिका पढ़ रहा था, तो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का एक बयान मैंने सुन रहा था। तो नितिन गडकरी जी एक मीटिंग में गए थे, वहां सभी नेता जुटे थे, प्रधान बैठे थे, प्रमुख बैठे थे, जिला पंचायत अध्यक्ष बैठे थे, एमएलए बैठे थे, एमपी बैठे थे, मिनिस्टर बैठे थे, मुख्यमंत्री बैठे थे। तो गडकरी जी ने प्रधान से पूछा कि प्रधान जी आप बहुत दुखी हैं, क्या बात है? कहा मैं क्या करूं, मैं प्रधान बन गया हूं, मैं सोच रहा हूं कि प्रमुख बन जाऊं। बगल में प्रमुख जी बैठे थे। प्रमुख जी से पूछे, प्रमुख जी आपको क्या तकलीफ है? हम चाहते हैं कि हम एमएलए बन जाए। उनके बगल में एमएलए साहब बैठे थे, तो उनसे पूछे भाई आप क्यों दुखी हैं? कहा हम मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। उनके बगल में एक मंत्री जी थे, तो उनसे पूछे कि हम तो मंत्री बन गए हैं, हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये तकलीफ हमको है। तो बगल में मुख्यमंत्री बैठे थे, तो मुख्यमंत्री जी से पूछा भाई आपको क्या तकलीफ है? कहा हम तो मुख्यमंत्री बन गए, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य कि एक लक्ष्य पाने के लिए हर व्यक्ति की सोच, उसी तरह आपका भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, और जज्बे और जुनून के साथ बनने के लिए पूरी ताकत ऊर्जा के साथ लगिए। यही हमारा आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए सुझाव है, यही हमारा कहना है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। माने ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे दिल के तार से इंडिया वाले, छिले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। I sincerely thank our Honorable Chief Guest, Sri Om Prakash Rajwarji, who has come here and he has made successful and also inspired in his thought, and the words really it will inspire all of our students as well all the people present here. Really, sir, your words will always be remembered and always it will be applicable to all our students. Thank you, sir. Thank you so much for the inspiring words that you have given for all of us here. Thank you. And all the dignitaries we see here, yes, of course, the presence has made this event more and more meaningful and more successful. So let us give a big round of applause to all the dignitaries present here. A special round of applause to our students, whose vibrant dance performance fill the stage with energy, color and joy. We are grateful to our teachers as well and all who present here.
for their continued support and encouragement, and all the audience present here also. Your presence made this event remarkable. Once again, a heartfelt thanks to Honorable Sri Om Prakash Rajbirji, Director Sir, Principal Ma'am, and everyone present here. Yes, thank you all. Thank you so much. Now itself, let the day may inspire. Let the words may pride and joy begins and bring all of us, and let the day be bright and brighter and the brightest day. Thank you all.